नमस्कार फ्रेंड्स, साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब this channel for professional medical guidance, for spirituality and meditation, for life coaching, for personality development and travelogues. Thank you very much for being a part of my online YouTube family. Thank you very much. So nice of you. Thanks for giving your time. Introducing Dr. Neelam Tejwani. She is a consultant gynecologist practicing for last 25 years. And she is also very qualified and experienced personality in naturopathy. So in a holistic manner, we will have a lot of discussions on how naturopathy can help in current scenario of COVID-19. Welcome, Dr. Tejwani. Welcome on board. It's my pleasure. So, would like to know from you, as you are working as an associate professor in medical college in Jain for more than 25 years now, what inspired you to develop yourself in naturopathy and to practice in more holistic manner? Actually, being a gynecologist, I'm seeing that many of the problems, especially the hormonal problems, are such annoying for the patient. Patient takes that 21 days pill or any hormone with lot of side effects, and till the patient takes it, they are benefited by it. But as soon as they will stop it, the problem will recur. And the basic problem is not the drug, not solved by the drug which we are giving. Basically, they need a lifestyle modification because the cause of problem is the lifestyle. The toxins which are produced because of the faulty dietary habits, faulty sleep, faulty thinking, and all that. So that has to be actually removed. And I felt that there is no actually proper treatment for many of the diseases, which can be treated to a large extent by modifying lifestyle. Right. So, what naturopathy exactly means? Basically, it's a method, very constructive method of treatment which aims at removing the basic cause of the disease. By the basic cause of the disease, according to naturopathy, are the toxins which are produced in our body, especially as a byproduct of many processes which are undergoing in our body, like digestion, especially by overeating, eating faulty diet, acidic diet, lack of sleep, overexertion, anxiety. By the rational use of the natural things which are available around us, like sunlight, fresh air, water. The earth element means the mud. मिट्टी की हीलिंग पावर हमें बहुत सालों से पता है, हम यूज करते रहे, हमारे पूर्वजों से हम सुनते रहे हैं. हाँ, ये अलग है कि आजकल हम जैसे से इवॉल्व हुए हैं, हमने इनको यूज करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर हम रिवर्ट बैक होके उन्हीं प्रोसेसेस पे जा रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे, क्योंकि अब हमने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है पावर को नेचुरली. एंड स्पेशली द गुड डाइट, proper diet, good sleep, and meditation and proper mental attitude. Right. So, how the system of naturopathy has evolved? Can you throw some light on that? Basically, it's a very old system. Many things are mentioned. Use of water packs or bath, different types of baths or massages has been we are hearing since a long time in our ancient sacred books also. And मिट्टी का healing power, हमेशा से हम सुनते रहे हैं कि जमीन से जुड़े रहो, मिट्टी बहुत हीलिंग है. पहले के जमाने में तो हम कितनी सारी चीजें, जहाँ भी अगर कोई घाव होता था तो ट्रीटमेंट के तौर पे मिट्टी लगा दी जाती थी, तब हम हंसते थे उसको देख के. लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली इट्स वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी विच वी आर रिकॉग्नाइजिंग इट. वही सब चीजें घूम वापस हमारे पास आ रही हैं जिनको हमने रिफ्यूज कर दिया था फॉर अ शॉर्ट टाइम. लेकिन जो नेचुरल सिस्टम अभी जो डेवलप हुआ है वो जर्मनी में डेवलप हुआ 1822 में.
और वाटर सिस्टम इवॉल्व हुआ सबसे पहले, और फिर उस साथ में बहुत सारी नेचुरल चीजों का ट्रीटमेंट उस साथ में जुड़ता गया और एक पूरा ग्रुप बन गया जो कि नेचुरोपैथी कहलाया. Benedict Lust is Dr. Benedict Lust is the father of naturopathy who has evolved actually this. क्या ये भी कुछ ऐसा ही है जो हिंदुस्तान से पद्धति बाहर गई, वेस्ट में गई और वापस हिंदुस्तान में आकर के नए सिरे से लॉन्च हुई, जिसको नेचुरोपैथी कह दिया गया? जैसे कि योगा है, जी हाँ. हमारे यहाँ योगा एंशिएंट टाइम से हमारे संत करते आए हैं, हमने देखा है, लेकिन हमने कभी उसकी पावर को रिकॉग्नाइज नहीं किया. लेकिन जब वो बाहर गई और वहां के लोगों ने उसको एडमायर किया और इन्होंने उसको अपनाया और उसके फायदे देखे, तब हम लौट के वापस वहीं पे पहुंच गए और अब हमने उसको यूज. बिल्कुल सेम सिस्टम. Very right. So, what are the basic principles of naturopathy? Basic principles are actually they are saying that man is born healthy and he will remain healthy until and unless there is any violence in the natural systems. And according to naturopaths, the toxins which are the cause of any disease is toxin. And these toxins are the byproduct of many processes, metabolic processes, which are undergoing in our body, especially overeating. They are saying overeating is the worst thing. And eating the worst thing, as well as eating the bad quality of food. Bad quality means हमारे लिए वो bad quality अब है अगर हम नेचुरोपैथी को समझ रहे हैं तो. वरना अब जो लाइफस्टाइल है उसमें पिज्जा या जंक फूड या ऑयली फूड या एसिडिक फूड, दैट इज वेरी कॉमन. शायद कुछ लोगों की मजबूरी भी है जो हॉस्टल में रहते हैं, बच्चे हैं या जो लोग घर से बाहर रहते हैं, उनके लिए शायद पॉसिबल नहीं होता. लेकिन एक बार अगर वो कॉन्शियसनेस आ गई तो हम कहीं पे भी वो फूड ढूंढ लेंगे जो हमारे लायक है. करेक्ट. जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द बैड डाइट, bad mental attitude, overexertion, lack of sleep, because it will actually make our body so much acidic that if our alkalinity of our blood if decreases to even some extent, the body will become acidic and it will become a very good source of germination for the many germs which are present. जितने भी बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो बहुत फास्ट, बहुत तेजी से ग्रो होते हैं उस बॉडी में जहां पर अल्कलिनिटी कम है, थोड़ी सी भी. So basic aim of our treatment should be, or basic aim of our daily lifestyle should be to make our body alkaline as much as possible. As much as possible, right. And body has its own healing power. Right. You can heal anything, any disease, but it should not be suppressed by drugs. हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं तो हमें ऐसी बातें एक्चुअली नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है. नहीं, मेरा सोचना, we should always think in a holistic manner. We should consider patient as a whole and should be able to advise whatever the best and in favor of the patients. Yeah, naturally. Right, I completely agree and appreciate your thought process to develop yourself on naturopathy side, and that's why I thought of learning from you and giving benefit to our viewers also. So let's understand, as you said just now, the dietary factors are very important. So what are the fasting methods and what are according to naturopathy, what fasting methods are they recommended in that? Actually, in the naturopathy, they say that fasting is the master healer. Okay. The most important thing. Mm-hmm. The first important rule is don't eat if you are sick. Okay. Don't eat if you are sick. Oh. Most important thing they say. Uh-huh. जबकि हम कहते हैं कि अगर बीमार है तो बहुत खाएं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खाएं, लेकिन नेचुरोपैथ कहते हैं खाना बंद कर दीजिए. Okay. वो अलग बात है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द बॉडी, एज एंड प्रेजेंस ऑफ एनी कोमॉर्बिड कंडीशंस, the type of fasting can be ascertained. Like it may be a dry fasting in which you don't take anything. Anything means not even the water. It may be a hot water fast. It may be a intermittent fasting, which is very popular nowadays. Intermittent fasting can be done by 12 hours or 16 hours depending upon the. Intermittent fasting एक वीडियो भी डाला था पिछले कुछ 5 महीने से intermittent fasting में स्वयं अनुभव कर रहा हूँ, and it has given me a wonderful experience with that.
और पिछले कुछ महीनों से निर्जला एकादशी फास्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें जल भी नहीं लेता हूँ, फूड पार्टिकल्स भी नहीं ले रहा हूँ. So I'm really getting wonderful experience with that. So that is why I was more curious to know about your fasting methodology. So once you said intermittent fasting is also very nice. Yeah. Ji. It may be Nirjala Ekadashi, as you are saying. It's also a type of fasting. It may be a juice fasting, or it may be a one-time fasting, like Ekadashi, we are saying. और फास्टिंग तो एक्चुअली हमारे धर्म में बहुत सालों से, बहुत टाइम से है, और सारे धर्म के लोग इसको अपनाते रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम्स हों, अलग अलग तरह से. हाँ, ये अलग है कि उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया है, लेकिन बेसिक द सिस्टम इज टू प्यूरिफाई अवर बॉडी. राइट. एम इज टू प्यूरिफाई अवर बॉडी. राइट. और सिर्फ फास्टिंग से हमारी बॉडी ही प्यूरिफाई नहीं होती है. जो कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा अमन. अगर हम खा नहीं रहे हैं या उस समय बहुत लाइट खा रहे हैं या जूसेस पे हैं, तो नेचुरली हम मेंटली भी बहुत रिलैक्स, बहुत काम फील करते हैं, बिकॉज द एनर्जी विच वी आर स्पेंडिंग इन डाइजेस्टिव प्रोसेस, दैट एनर्जी इज कंजर्व. वी आर हैविंग दैट एक्स्ट्रा एनर्जी. और आपने, अगर आप एकादशी करते हैं तो आपने ये फील किया होगा कि जब नेक्स्ट डे, हम उस दिन थोड़ा सा हंगर पैक्स होते हैं फर्स्ट डे, नो डाउट, बट नेक्स्ट डे जब आप उठते हो तब देन यू फील वेरी लाइट, वेरी गुड. Right. And So the basic, टोटल डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है बॉडी में फास्टिंग से. वो कैसे होता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. हाँ. जब हम फास्ट करते हैं तब बॉडी को जब नीड होती है कैलोरीज की, तो वो कहाँ से लेके आएगी? तो वो फैट जो हमारी बॉडी में प्रिजर्व्ड है इतने सालों से, वो उसको यूज करना शुरू करती है. अगर हम पूरे टाइम खाते रहते हैं या उतनी कैलोरीज जितनी हमारी बेसिक नीड्स हैं रोज की, अगर हम उतना खाते रहेंगे तो बॉडी को वो फैट यूज करने का मौका ही नहीं मिलता है नेचुरली. अगर उसके पास पहले से जो रिजर्व है वो यूज तभी होगा जब उसकी कमी होगी उसके पास. तो जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तब वो उस फैट को यूज करती है पहली बात. तो इट्स वेरी गुड फॉर वेट रिडक्शन आल्सो, एज वेल एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बॉडी विल डू ऑटोलिसिस इन दिस फास्टिंग पीरियड. और ऑटोलिसिस इतनी स्मार्ट है बॉडी कि ऑटोलिसिस वो उन्हीं सेल्स का करती है जो कि डिजीज्ड हैं, ओल्ड हैं, डैमेज्ड है. नए सेल्स का ऑटोलिसिस नहीं होता है. अच्छा. तो बेसिकली ऑटोमेटिकली उस समय जो ऑटोलिसिस होता है तो उसमें जो पुराने ओल्ड टॉर्न सेल्स, डिसीज सेल्स अपने आप बॉडी से हट जाते हैं. और चूंकि वो बॉडी से हट जाते हैं तो नेचुरली एक क्लीनिंग प्रोसेस हो जाती है. वी विल फील रिजुविनेटेड, रीजनरेटेड. प्लस मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारी है या डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है हमारी, वो स्पीड अप होंगी. राइट. पुराना कचरा पूरा निकल गया. बराबर. The most important thing but before fasting is that you empty your bowel first. Otherwise, it may hamper your experience of fasting. So that is very important. Otherwise, fasting is a very good remedy. Even महात्मा गांधी तो मास्टर कहे जाते हैं. बिल्कुल सही. इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैं भी जो एनईजीएम का आर्टिकल था फरवरी में, उसकी अपडेट्स है. और that recommends कि 6 hours feasting time and 18 hours fasting time. So that's how one can monitor. And 6 hours में आप क्या maximum कितना खा लोगे ना, मतलब at the most you can have 2 meals, one minor 20-30% caloric requirements, other will be 70-80% calorie requirements. So they end up with 1000, 1100, 1200 maximum calories consumption. That's it. So that also really helps, and at least to me it has really helped out. So that was last in 4-5 months I have been successful to reduce my weight by 7-8 kgs. Documented. And one more thing is actually one more thought is coming nowadays, that anytime you eat anything means anything, there will be insulin release. Right. And many times you release insulin from your body, it will be depleted. The total amount of insulin in your body is reserved. That is fixed. Right. So it's better if you eat 2 times. Okay. उल्टा उनकी क्योंकि डाइटिशियंस हमको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि eat 6 to 7 times, बिकॉज अगर एक टाइम पे ज्यादा खाए तो इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा रिलीज होगा, तो ग्लूकोज लेवल जो बढ़ेगा उससे वेट गेन होगा क्योंकि उतना इंसुलिन बढ़ेगा. बजाय उसके ये कहते हैं कि आप 2 समय ही खाइए. अच्छा, हमारे संत लोग कहा करते थे
कि बार बार खाए वो रोगी, 2 टाइम खाए वो योगी। हाँ, वो ये कहते होंगे शायद उन्हें इन सब चीजों का पहले से ही ज्ञान था जो अब हम सीख रहे हैं, सही बात। कि जितनी बार हम खाते हैं उतनी बार इंसुलिन रिलीज होता है, तो हम अपने पेनक्रियास को एग्जॉस्ट करते हैं ऐसे करके। तो अगर हम खाना लिमिट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए और उसके बाद कुछ टाइम तक नहीं खाते, तो इंसुलिन उतनी देर के लिए रिलीज नहीं होता, पेनक्रियास विल गेट रेस्ट फॉर दैट पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। राइट, बहुत बढ़िया बात आपने बोली। बार बार जो खाए वो भोगी और जो 2 बार खाए वो योगी। बहुत बढ़िया बात, अच्छा लगा। तो अब ये बताएं कुछ, व्हाट इज अर्थ एलिमेंट, इसके बारे में कुछ जानकारी बताएं, क्या नेचुरोपैथी में क्या है? अर्थ एलिमेंट एक्चुअली हीलिंग पावर है अर्थ की। ओके। पहले के जमाने में आपको पता होगा, अब आजकल तो हम लोग बिना चप्पल घूमते ही नहीं घर में, लेकिन पुराने में जब हम छोटे थे तब हमें याद है कि सब लोग घर में बिना चप्पल के ही घूम करते थे। हाँ, तब तो हमको सब समझ नहीं आता था, लेकिन बेसिकली अर्थ में जो मैग्नेटिक पावर है वो हील करने में हेल्प करता है बॉडी के सारे एलिमेंट्स। अच्छा। और वैसे भी कहा जाता है कि कुछ देर के लिए जमीन से जुड़ो, मतलब आप कुछ टाइम के लिए, अगर आप चप्पल भी पहनते हो पूरा टाइम या नहीं रहते हो बेयरफुट, तो भी कुछ टाइम के लिए जमीन पे बैठो, डायरेक्ट जमीन पर, अच्छा। विदाउट एनी, बिकॉज अर्थ हैज अ मैग्नेटिक पावर विच हैज अ वेरी। और अभी हम जो अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा एक और पार्ट है दैट इज मड। जो मिट्टी है, हम उसकी हीलिंग पावर की बात कर रहे हैं, बिकॉज मिट्टी में बहुत बढ़िया एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है। हाँ, ये अलग बात है कि जो हम मड प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे मड पैक्स एक्चुअली नेचुरोपैथी में रिकमेंड किए जाते हैं फॉर एब्डोमिनल थिंग, और चेस्ट के लिए, इवन आईज के लिए, बैक के लिए, हिप्स के लिए, बहुत सारी अलग अलग एरियाज में जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो, उसके लिए वो लोग जो जमीन का लेवल होता है उसे 10 सेंटीमीटर 10 इंचेस बिलो जाकर और मड निकालते हैं, उसको वार्म वाटर में ग्राउंड करके वार्म वाटर में उसका एक पेस्ट बनाया जाता है, और स्मूथ पेस्ट, दैट पेस्ट इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग। स्पेशली जैसे अगर आपको कोलाइटिस है या ओबेसिटी भी है, तो उसके लिए ये लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जब आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कहीं लेने जाते हैं, तो एब्डोमिनल फैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका। तो पहले मुझे समझ नहीं आता था कि उससे क्या होगा, लेकिन जब पढ़ा उसको और समझा, देखा, तो समझ में आया कि ये लोग क्या करते हैं कि पहले तो एब्डोमिनल पार्ट को 5 मिनट्स के लिए वार्म करते हैं बाय कुछ, जिससे अपना ये गर्म पानी की थैली होती है उससे, या फिर गर्म बॉटल से, एंड आफ्टर दैट दे अप्लाई दैट मड पैक। डायरेक्ट मड जो होता है कपड़े पे लगा के डायरेक्टली एब्डोमेन पे लगा देते हैं 20 बाय 10 सेंटीमीटर की शीट से, एंड कवर इट बाय अ ड्राई टॉवल एंड कीप इट फॉर 25 to 30 मिनट। उनका क्या लगता है कि जो इम्प्यूरिटीज होती हैं हमारी ब्लड की, उसको पूरी सरफेस पे लाकर वो लोग खींच लेते, जो मड है वो खींच लेती है, प्लस जो जितना भी डेसिकेटेड फीकल मैटर आपकी इंटेस्टाइन में पड़ा होगा उस सबको स्वेल करके वो एक्सपेल करने में हेल्प करती है। जब मैं नेचुरोपैथी के एग्जाम दे रही थी, तब जो एग्जामिनर थे वो बहुत इम्प्रेस हो गए ये देख के कि मैं डॉक्टर हूँ और नेचुरोपैथी एग्जाम देने आई हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि अगर हम ऐसी जगह है जहाँ हमको मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमको उसका फायदा तो लेना है इस चीज का कि हम क्लीन करना चाहते हैं अपने एब्डोमेन को, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि बाहर जहाँ है फॉरेन में ही लोग ऐसा करते हैं कि एक टॉवल को गीला करते हैं और अपने एब्डोमेन पे पहले वार्म कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसा कि वही प्रोसीजर फर्स्ट था, लेकिन मिट्टी की जगह एक वार्म टॉवल, गीला टॉवल बिल्कुल ठंडे पानी में डूबा हुआ पेट पे रख दीजिए और उसके ऊपर एक सूखा टॉवल रख दीजिए और रख के आप सो जाइए उसको। अच्छा। आप सुबह जब फ्रेश होने जाएंगे तब यू विल फील कि इतना स्मूथ डेफिकेशन तो कभी हुआ ही नहीं। तो स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट जो मेरे पास होते हैं, जो किसी चीज से ठीक नहीं होते हैं, इवन कई बार पीसीओडी वाले पेशेंट्स को या बहुत सारी लेडीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन, उनको जब मैं ये रिकमेंड करती हूँ तो बिल्कुल मिरेकलेस रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब आई एम सो हैप्पी, कितना सिंपल प्रोसीजर है, बिल्कुल लाइक 0 पैसे लग रहे हैं आपको, और इट्स सो सिंपल, सो चीप एंड सो इजी, और हार्मफुल भी नहीं है, सो हार्मलेस। तो
मतलब क्या वार्म टॉवल खाली रखने से, या अपन घर में क्या कर सकते हैं? जैसे हम लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं तो वहां पे क्या किया जा सकता है? आपने बताया वार्म टॉवल रख सकते हैं। नहीं, सिंपल टॉवल आप गीले ठंडे पानी में डुबोइए और पेट पे रख दीजिए। बस एक ही शर्त है कि खाना खाने के कम से कम 3 to 4 आवर्स के बाद आपको ऐसा करना है, अदरवाइज इट विल स्लो योर मेटाबॉलिज्म। रात भर रखे रखना है? हाँ रात भर रखे रखना है? हाँ, रात भर भी आप रख सकते हैं। अच्छा। अगर आप अनकंफर्ट लग रही है या डिस्कंफर्ट लग रही है कि मैं गीला टॉवल रख के नहीं सो सकता हूँ, तो आप 1 घंटे बाद उसको हटा सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज अगर आपको नींद आ जाती है उसके साथ में, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब बॉडी की जो हीट होती है ना, वो उस टॉवल को सुखा देगी कुछ टाइम बाद। हाँ। आप जब सुबह उठेंगे तब वो टॉवल गीला नहीं होगा, गीला नहीं होगा। क्योंकि टॉवल को पूरा से टपकता हुआ गीला नहीं चाहिए। बराबर। आप उसको निचोड़ के हल्का गीला रख के ऊपर से टॉवल एक और सूखा रख के सो जाएंगे आराम से। कुछ टाइम बाद आपको नींद आएगी। स्पेशली गर्मी में तो ये बहुत ही यूजफुल टिप है, हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी, क्योंकि ठंडा टॉवल आपको अखड़ता नहीं है। बिल्कुल सही। प्लस बहुत अच्छे से कॉन्स्टिपेशन को कंप्लीटली ठीक कर देता है, क्रॉनिक केसेस को भी ठीक कर देता है। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी जानकारी लगी। ये बताएं थोड़ा मसाजेस के बारे में। मैं इतने सालों से मिडिल ईस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो मैंने ये अनुभव करा, बहुत सारे लोग केरला आकर के और बहुत सारी ऐसे जो बहुत नोन टू प्लेसेस है मसाजेस के लिए, वहां पे मसाज कराने जाते हैं, जिसके एक्यूट डिस्क्वालिफिकेशंस भी वहां जाकर के ठीक हो करके 3 से 6 महीने में मेरे पास आकर के दिखाया। आई रियली वंडर हाउ डज दैट वर्क्स। सो मसाजेस के बारे में कुछ बता सकते हैं, कैसे काम करता है, क्या है ये? मसाजेस में एक्चुअली डिफरेंट एरियाज की मसाज डिफरेंट तरीके से की जाती है। उसमें 5 स्ट्रोक्स होते हैं। द फर्स्ट स्ट्रोक इज stroking, then rubbing. Third thing is kneading. We need a kneading process. Kneading process की जाती है. Then fourth one is percussion and fifth is stroking, shaking. ये 5 प्रोसेस होती हैं जब मसाज की जाती है। एंड एक्चुअल ऑयल जो यूज होता है मसाज के लिए, वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है पेशेंट। ओके। कैस्टर ऑयल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल्स भी होते हैं जो यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। राइट। प्लस मसाज शुड बी डन इन द एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन। ओके। पैरों के अगर मसाज करें तो नीचे से ऊपर की तरफ होगी, मतलब टोज से लेके हिप्स की तरफ जाएगी। ओके। हाथों का भी ऐसे रहेगा कि यहाँ से लेके आप ऊपर की तरफ जाएंगे, उसको एंटी ग्रेविटी कंडीशन उसमें ही किया जाता है, डायरेक्शन में हमेशा। डिस्टल टू प्रॉक्सिमल है ना? या एंड हमेशा मसाज के बाद आपको रिलैक्स होना होता है। एक्चुअली मसाज इज वेरी रिलैक्सिंग, नो डाउट। उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट आपको लेना होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी रिजुविनेटिंग प्रोसेस। ये ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ाती है, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो पार्ट है वो है, अब हम आयुर्वेदा पे आ रहे हैं क्योंकि वो भी हमने मिक्स कर दिया, कि जो 3 दोष होते हैं शरीर के, कफ, पित्त और वात, उन तीनों दोषों को बैलेंस करने में मसाज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। राइट। इवन अगर हम मसाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मसाज के लिए जा पाए। इट्स वेरी कॉस्टली, प्लस टाइम कंज्यूमिंग, प्लस अवेलेबल है हर जगह, ये जरूरी नहीं है। तो वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप एक सूखा टॉवल लीजिए और नहाने से पहले 15 मिनट के लिए अपनी बॉडी को अच्छे से, पूरी बॉडी को रब करिए, स्पेशली एब्डोमिनल एरिया, हिप एरिया, बैक एरिया, थाइज एरिया। तो हाँ, एक तो फैट भी नहीं होगा, प्लस उसका सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा होगा, और जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा नेचुरली वो टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। राइट। ये जो अपने स्पा में जो मसाजेस होते हैं और जो नेचुरोपैथी के मसाजेस होते हैं, आर दे मोर और लेस सेम, और बेस्ड ऑन द सेम साइंस एंड मेथोडोलॉजीज आर डिफरेंट, और मेथड्स आर आल्सो सेम? Almost same, but the type of oil used may be different. Okay. Different type of head massages for different conditions like headaches and all that. Right. Otherwise they are, and जो स्पा में ये लोग मसाज करते हैं, उसके बाद में फिर ये लोग स्टीम बाथ, सोना बाथ वगैरह देते हैं। Correct. वैसे ही सेम नेचुरोपैथ्स भी उसके बाद में स्टीम बाथ देते हैं, लेकिन it should be followed by cold shower immediately. This temperature change is very important in naturopathy. Right. बहुत अच्छी जानकारी लगी। तो ये कुछ सत्कर्मा या योगिक क्रिया, इसमें इसके बारे में कुछ बताएं।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है वाकई, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ और बहुत रियली बहुत क्लीनिंग, आपको बहुत क्लीनिंग फीलिंग होती है। प्लस अगर आपने एक बार कर लिया तो नेचुरली यू विल रिपीट इट मेनी टाइम्स। वैसे तो योग में योगा आसन प्लस प्राणायाम, मेडिटेशन, फिर बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद, ये सब हम प्रैक्टिस करते रहे हैं हमेशा। जो लोग योग करते हैं उनको उसका बहुत अच्छे से आइडिया होगा। प्लस जो षटकर्म है उसमें कुछ क्रियाज होती हैं। सबसे पहली है जल नीति। अभी हम ये जो कोविड की सिचुएशन है उसमें अभी मैंने बीच में एक वीडियो देखा था, उसमें कहीं का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन सी जगह थी, पर वहाँ डॉक्टर्स पोस्टेड थे इवन कोरोना वार्ड में, वो कोरोना में अच्छे से काम कर रहे थे, बट नो वन वाज इन्फेक्टेड बाय कोरोना। They were saying कि every day we are doing jal neti. What is jal neti? I will show you. We will take a tepid water with a little bit of salt. उसकी consistency ऐसी होना चाहिए जो हमारे आंसू की होती है, जो हमारे टीयर की जो consistency होती है, उतना ही salty, उतना ही गर्म वो पानी होना चाहिए. There is a pot, actually this type of pot, this is known as neti pot. I use it, so I am having it actually. आप इसमें गर्म पानी भरेंगे और पहले आपको ये देखना होता है, जब आप स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको ये देखना होता है कि आपका कौन सी सांस चल रही है, क्योंकि हर 45 मिनट्स में हमारी सांस चेंज होती है। अच्छा। 45 मिनट्स के लिए राइट सांस चलेगी और फिर 45 मिनट्स के लिए लेफ्ट सांस चलेगी। अच्छा। तो व्हेन यू स्टार्ट, इट्स बेटर दैट यू फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द साइड, जिस तरफ की आपकी सांस चल रही है। ओके। आप अपनी गर्दन को इस तरह से टिल्ट करते हैं। अगर आपको अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लीन करना है तो आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, पानी भरा हुआ है इसमें, और आप यहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे। व्हेन यू विल इट विल कम दिस वे, यहाँ से जाके वो पूरा यहाँ से बाहर आ जाएगा। बट इट शुड बी अ वेरी स्लो प्रोसेस। कई बार एकदम से नाक में जब पानी आता है तो स्टार्टर जो होते हैं वो बहुत कम घबरा जाते हैं, तो पानी एकदम इनहेल करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी स्लो प्रोसेस। एंड देन अगेन द रिवर्स वन, you have to tilt this side and clean it. Right से पानी करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकलेगा, लेफ्ट से जब डालेंगे तो राइट से निकलेगा। या पानी पूरी तरह से बाहर आ जाए, फिर आप 2 मिनट नासोफेरिंक्स में नहीं जाना चाहिए, इधर से ही वापस आ जाना चाहिए। वैसे कुछ लोग अंदर भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक नाक को बंद करनी पड़ती है, पर वो थोड़ी सी टीडियस प्रोसेस है, तो अगर हम उस तक नहीं भी जाएंगे तो भी वो अपना काम करेगी। क्योंकि अभी एक्चुअली कोरोना के सिचुएशन में ये लोग कहते हैं, मतलब क्लीनिंग एक्चुअली क्यों जरूरी है, मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्ट बैक्टीरियाज होते हैं या वायरस जो है अभी तो स्पेशली कोरोना में अभी नेजोफेरिंक्स में पहुंच जाता है। तो अगर हमने डेली अगर नेजोफेरिंक्स को क्लीन कर लिया तो वो अंदर जाने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा, हम उसको इसी एरिया से क्लीन कर देंगे। लेकिन चीजें हमको ध्यान रखनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक तो ये देख लीजिए कि कौन सी सांस आपकी चल रही है। सेकेंडली ये जो पानी है हमको इसको पूरी तरह से बाहर करना है। अब बाहर कैसे करेंगे? बाहर तो आ गया, यहाँ से जितना आना था उतना तो आ गया, लेकिन कुछ पानी अंदर रह जाता है, वो हमको अंदर रखना नहीं है, अदरवाइज वो हमको परेशान कर सकता है। हेडेक स्पेशली हो जाता है उससे कई बार स्टार्टर्स को। तो उसके लिए हमको उसके बाद में कपालभाति करनी होती है, बिल्कुल स्लोली। अच्छा। ऐसे करके आप धीरे धीरे आप जब करेंगे तब आप फील करेंगे, आप एक हाथ अगर यहाँ रखेंगे तो आपको कुछ पानी की बूंदें उस पर आती हुई दिखेंगी। अच्छा। और आप उस को तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो पानी आपके हाथ पे आना बंद नहीं हो जाता। अच्छा। जब ये पानी आपके हाथ पे आना बंद हो गया, इसका मतलब कि वो नेजोफेरिंक्स में जितना पानी बचा था वो बाहर आ गया। उसके बाद में एक और प्रोसीजर होता है जो हमको करना ही चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इट्स अ सलाइन वाटर प्लस थोड़ा सा हल्का कुनकुना गर्म भी है, तो हमारी नेजल अंदर के एरिया को वो थोड़ा ड्राई कर देता है। राइट। तो उस ड्राइंग को अवॉइड करने के लिए हम कुछ तेल अंदर डालते हैं। अच्छा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अगर गर्मी है तो गाय का शुद्ध घी थोड़ा सा गर्म करके और फिर हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट अपनी गर्दन को थोड़ा सा टिल्ट करें और ड्रॉपर से 2 बूंद नाक में गया, उसको इनहेल कर लीजिए, फिर सेकंड नॉस्ट्रिल को बंद करके 2 बूंद इसमें गया और आपने उसको इनहेल कर लिया। अच्छा। अगर मौसम ठंडा है, ठंड का मौसम है या बारिश का मौसम है, जैसे स्पेशली अभी जैसे मैं यूज कर रही हूँ तो मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड। हालांकि शुरू में आपको थोड़ा सा उससे इरिटेशन होगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जब आप जाता है नाक में तो बहुत तीखा लगता है। बच्चों को तो मैंने जब 1-2 बार करवाया तो वो उसको बियर ही नहीं कर पा रहे, तो उनको इतना स्ट्रांग लगता था, बट आई एम एक्चुअली हैबिचुअल टू इट। कुछ टाइम आपको लगेगा
उसके बाद में बहुत सूदिंग हो जाएगा। मुझे लगता है अभी जानकारियां जब ज्यादा होती है तो डर नहीं रहता बच्चों को, चूंकि जानकारी नहीं है, साइंस समझ नहीं पाते हैं, तो उनको डर के कारण थोड़ा सा जल्दी ज्यादा अप्रेंशन में रहते हैं. If you have a proper adequate information and knowledge, you will definitely be able to handle it much better. Right. आप 2 ड्रॉप आपने मस्टर्ड ऑयल डाला, वो नाक में गया, सूंघ लिया आपने, अंदर हो गया. इवन उसके बाद मैंने एक चीज और देखी कि जितना भी म्यूकस आपके गले में रहता है, म्यूकस जितना भी रहता है, वो थोड़ी देर बाद आपको एक्सपेल करना शुरू कर देते हो. आपको इतना अमाउंट ऑफ म्यूकस निकलता है जो आपको लगता है कि मेरे को तो कभी सर्दी थी ही नहीं, बिल्कुल ठीक थी ना, मुझे थ्रोट था ना मुझे सर्दी थी, लेकिन इतना म्यूकस निकलता है, मतलब वो इतना अंदर था इकट्ठा, जो आप एक्सपेल करते हो, जो आपको बीमारियों से बचाता है. सब क्लिनिकल लेवल पे था जो मैनिफेस्ट नहीं करता है, और जब इस तरह से करते हैं तो वो पूरा क्लीन रहेगा तो हमें परेशान कर सकता है. तो एक तो ये हो गई जलनीति जो बहुत इजीली सीखी जा सकती है. कोरोना के अभी की कोरोना की सिचुएशन में तो बहुत ही अच्छी है, सभी को करना चाहिए. राइट. अच्छा, अगर आपके पास ये पॉट नहीं है तो आप क्या करेंगे? हाँ. हर किसी के पास ये पॉट नहीं होता है. वही पूछना चाह रहा था. जी, यही पूछना चाह रहा था. उन लोगों के लिए मैं एक और सिंपल तरीका बताती हूँ. एक गिलास में सिंपल पानी गर्म करिए, थोड़ा सा सॉल्ट डाला आपने, और अपने हाथ की ऐसी अंजुली बना दीजिए. राइट ना, इसमें कुछ पानी आ जाएगा. अब आपने एक नाक बंद की और इस हाथ में जो पानी है उसको आपने सक किया, और फिर वो थोड़ा सा अंदर जाएगा, आपके मुंह में जाएगा, फिर आप मुंह से उसको थूक दीजिए. फिर आपने इस नाक को बंद किया, इसकी अंजुली बनाई, अंदर गया. ये भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है. बस ये है कि इसके बाद में भी आपको पानी निकालना है, थोड़ा सा कपालभाति करके, और फिर तेल या घी जो भी आप चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हो. Everyone can practice it and it's a very simple, very good procedure. Right. ये तो हो गया जल नीति के बारे में, है ना. सेकेंड जो बहुत इम्पोर्टेंट योगिक क्रिया है वो है वमन या धोती बोलते हैं. बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा प्रोसीजर है. स्पेशली जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है उनके लिए तो वरदान है एक्चुअली. अगर आप खुद कभी करके देखेंगे तो आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि मैंने पूरा अपने इनर एरिया को धो दिया है, जैसे बिल्कुल स्टमक पूरा धुल गया है, इतना क्लीन फीलिंग होती है. इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगी. इसके लिए हम 5 से 6 ग्लास गर्म पानी लेते हैं. गर्म मतलब कुनकुना पानी ही लेंगे हम हर टाइम. पानी बहुत गर्म नहीं होगा. उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, आधा चम्मच, और बैठ के उसको हम पियेंगे. 5 से 6 ग्लास, एक के बाद एक 5 से 6 ग्लास हम तब तक पियेंगे पानी जब तक हमको अब ऐसा नहीं लगेगा कि अब हम बिल्कुल भी और पानी नहीं पी सकते हैं, अदरवाइज वॉमिटिंग हो जाएगी. इट टेक्स अराउंड 4 to 5 ग्लासेस. 4 से 5 ग्लास आपने पानी पी लिया. उसके बाद में आप खड़े हो गए विथ थोड़ा सा अपने हेड को बेंड करके, और अपनी इंडेक्स फिंगर से और मिडिल फिंगर से अपनी यूला को टच करेंगे हम, और टिकल करेंगे थोड़ी देर. जैसे ही हम उसको टिकल करना शुरू करेंगे, वॉमिटिंग सेंसेशन होगा एंड देयर विल बी प्रेडिक्टल वॉमिटिंग. 2 मिनट के लिए तो जब पहला स्टार्ट करते हैं तो घबरा जाता है आदमी, लेकिन जब वो आदत हो जाएगी फिर it won't give you any apprehension. Right. पानी आपने निकाला, लेकिन अगर आपको पानी जो निकला है वो लग रहा है कि थोड़ा कम है, अभी जितना हमने पानी पिया उतना नहीं निकला है, तो अगेन टिकल योर यूविला टिल जितना पानी आपने पिया है ऑलमोस्ट उतना पानी बाहर निकल जाए. You will have such a wonderful feeling after that. थोड़ी देर के लिए तो आपको एकदम से घबराहट होगी क्योंकि पानी इतना निकाला है, वॉमिटिंग हुई है. Sit comfortably. वो सारा पानी निकल जाता है, पूरा पानी निकल जाता है, और उसके बाद आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी, आपको खुद को लगेगा कि पूरा अंदर का मेरा पूरा एरिया धुल गया है. करके देखिए उसको. इट्स अ वेरी गुड, वेरी वंडरफुल प्रोसीजर एक्चुअली. बिल्कुल एसिडिटी नहीं होगी, बिल्कुल क्लीन लगेगा, और सारा दिन आपको इतना कंफर्टेबल लगेगा कि कह नहीं सकते. इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर. Now the third procedure is, this is second procedure. Now the third procedure is त्राटक. त्राटक हमें पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको भी पता है त्राटक क्या. सॉल्ट वाटर को लेने वाला आपने बताया, उसको क्या प्रोसीजर कहते हैं जी? सॉल्ट वाटर लेने का जो प्रोसीजर बताया उसको क्या बोलते हैं? वमन. वमन 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 उल्टी बोलते हैं ना. वमन वमन मतलब उल्टी होती है. वमन धोती, धोती बोलते हैं. वो धोने के लिए है तो धोती. कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं, नौली और बस्ती, जिसमें कि गर्म पानी के टब में बैठा देते हैं पेशेंट को, और फिर वो एनएस से पानी खींचता है अंदर और फिर एक्सपेल करता है. बट दैट इज नॉट प्रैक्टिस वेरी मच.
Okay. बहुत ज्यादा यूजफुल या बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है. एक और प्रोसीजर है त्राटक. त्राटक हमें पता है कि हम एक पर्टिकुलर बिंदु पे अपनी आईज को कंसंट्रेट करते हैं. अब ये जो है कंसंट्रेशन वो किसी भी चीज पे हो सकते हैं. हम अपने थंब पे कर सकते हैं, दिए की लौ पे कर सकते हैं, मोमबत्ती की लौ पे कर सकते हैं. एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर. जिन लोगों को मेडिटेशन स्टार्ट करना है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब कंटिन्यूसली ग्लेज करते हैं कुछ टाइम के लिए उस दिए की बत्ती को, और फिर जब आंखें बंद करते हैं तो वो लौ आपको अपनी यहाँ फील होती है. एंड इट विल हेल्प यू टू गो इन मेडिटेशन. इट्स अ वेरी नाइस प्रोसीजर, वेरी गुड फॉर स्लीप. दिया जलाना है दिए की लो में, कहाँ पे फील हो? दिया आपके साथ 1 फीट दूर है, लेकिन आपकी आई लेवल पर है. और आप बैठ के आराम से देख रहे हैं दोनों खुली आंखों से. तब तक देख रहे हैं जब तक कि आप उसको देख सकते हैं, जब तक आपकी आंखों में से पानी ना आने लगे. अच्छा. उसके बाद आप धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए. जब आप आंखें बंद करेंगे तो बंद आंखों से आपको वो दिए की लौ यहाँ पर अपने थर्ड आई एरिया में महसूस हो दिखेगी. Okay. और देन यू विल गो इन मेडिटेशन. दैट इज अ वेरी गुड प्रोसीजर. दैट इज नॉन एज त्राटक. पर अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप उसको टॉर्च लाइट से या मोमबत्ती की लाइट से भी कर सकते हैं. अच्छा. और कुछ टाइम के लिए देखें, इतना टाइम नहीं देख सकते तो कुछ टाइम के लिए देखें, एंड देन क्लोज योर आईज एंड गो इन मेडिटेशन. इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर सिलियरी मसल्स आल्सो. Right. और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट वाला षटकर्म है, दैट इज शंख प्रक्षालन. इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर. बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है. पूरी इंटेस्टाइन्स को एक बार में क्लीन कर देता है. Okay. इसमें भी आप करीब करीब 2 लीटर पानी पीते हैं, पर 2 लीटर इकट्ठा पानी नहीं पीते हैं. थोड़ा सा गर्म करेंगे पानी को, वो टेपिड वार्म होगा. उसमें 1 नींबू निचोड़ेंगे. पर लीटर हम 1 नींबू निचोड़ेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे. अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो नमक को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन नमक का अमाउंट कम कर सकते हैं. Okay. हम नॉर्मल पानी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि नॉर्मल पानी अगर हमने पिया तो वो ऑस्मोसिस से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और एक्सपेल नहीं होगी नेचुरली. Right. इसलिए हमको उसको सॉल्टी रखना जरूरी है. प्लस नींबू और सॉल्ट हमें पता है क्लीनिंग का काम करती है. बराबर. हम बैठ के नीचे आराम से 2 ग्लास पानी पिएंगे. उसके बाद में सेट ऑफ एक्सरसाइजेज देयर. 5 एक्सरसाइजेज आर देयर. Starting from, actually the first exercise is Tadasan. We do Tadasan. After that, Tadasan. Then Kati Chakrasan. Then Triyak Bhujangasan. भुजंगासन आप करते हैं लेकिन पीछे देखते हुए. एक जब आप पीछे टर्न होते हैं तो अपनी जो अगली हील होती है, अपोजिट वाली हील, उसको देखते हैं. देन उदर आकर्षण, जिसमें आप स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ के और अपनी एक जो नी है उसको दूसरे पैर के पंजे पे टच करने की कोशिश करते हैं. इस तरह की बिल्कुल रगड़ने वाली मूवमेंट होगी, जिससे कि आपको फीलिंग ऑफ मोशन पैदा होगी. कुछ लोगों को ये 2 या 3 ग्लास के बाद ही हो जाती है. कुछ लोगों को 1 से 1.5 से 2 लीटर पानी भी लग सकता है. अच्छा. अमाउंट उसका अराउंड 2 लीटर ही रहता है जो हम यूज करते हैं. लेकिन 2 ग्लास पानी पीने के बाद में आप पूरा एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर 2 ग्लास पानी पियेंगे, फिर सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करेंगे टिल यू फील लाइक गोइंग टू डिफिकेट. और जब आप स्टार्टिंग में डेफिकेट करते हैं तो स्टूल विल बी थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, लेकिन अगली बार जब आप वापस पानी पीते हैं और जाते हैं तो थोड़ा सा येलोइश कलर का पानी जितना निकलेगा. मतलब आपकी इंटेस्टाइन इतनी क्लीन हो गई कि अब सिर्फ येलो पानी बचा है. लेकिन आप उस प्रोसीजर को तब तक करते रहेंगे जब तक कि एंड में वाटर जो आप डेफिकेट करेंगे वो इतना क्लीन ना हो कि उसमें एक फीकल मैटर का एक क्षण भी ना हो. इतना क्लीन वाटर आप पास करेंगे. मतलब यू कैन नाउ अप्रिशिएट कि कितना अच्छे से ये पूरा पानी आपकी पूरी इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा. वो क्लीनिंग जो हम शायद कभी भी नहीं कर पाते. राइट. बट देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन कि आप जब आपको ये करना है उससे 1 दिन पहले आप खाना अपना बिल्कुल लाइट रखिए. स्पाइसेस बिल्कुल मिनिमम या न के बराबर रखें. जिस दिन आप इसको कर रहे हैं उस दिन आपको कोल्ड वाटर बाथ नहीं लेना है. इवन वॉक भी नहीं करना है. कोई भी किसी तरह की कोई एक्सरसाइज या वॉक नहीं करना है. प्लस डाइट में आप जो लेंगे वो आधे से 1 घंटे के बाद लेंगे, जो भी आप खाना शुरू करेंगे इसके बाद. एंड दैट आल्सो शुड बी अ बिल्कुल पतली खिचड़ी with small amount of ghee in that. But that's all you can consume on that day. Okay. From second day onwards you can revert back to your normal diet, but with minimum of spices. It's a very good procedure known as Shankh Prashalan.
बट स्टार्टिंग में ये किसी नेचुरोपैथ या किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ रिस्की प्रोसीजर। पर एक बार आपने अगर उसको सीख लिया और कर लिया तो आप खुद ब खुद उसको हर मंथ करना चाहोगे। इतना बढ़िया, इतना क्लीनिंग प्रोसीजर। ये तो वंस इन अ मंथ करना सफिशिएंट है। हाँ। राइट, बहुत अच्छी जानकारी लगी। ये थोड़ा सा डाइटरी रिकमेंडेशंस कुछ बता सकते हैं नेचुरोपैथी के आधार पे अपने को, क्या चीजें जो अपन रोजमर्रा में करते हैं, जैसा भी आपने बताया फास्ट फूड वगैरह नहीं लेना चाहिए, कुछ और अपन वी आर ऑन द एंड ऑफ आवर सेशन, तो कुछ डाइटरी रिकमेंडेशंस के बारे में बता सकते हैं और कुछ जानकारी आप? नेचुरोपैथ्स कहते हैं एक्चुअली कि 80% ऑफ योर डाइट शुड कंटेन अल्कलाइन फूड एंड 20% शुड बी एसिडिक। राइट। अब अल्कलाइन में क्या हम खाएंगे? तो फ्रूट्स, जूसेस, रॉ फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वेजिटेबल जूसेस या सूप्स, इवन सूप्स, और cereals, meat, fish, eggs, they come in acidic area actually. So minimum of your food should be raw and alkaline. Because if you will eat alkaline food, your body will become alkaline and it will have a greater capacity to fight the infections. Correct. और सारे infections को automatically वो अपने body से expel करते हैं। Right. प्लस स्प्राउट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं नेचुरोपैथ्स। आप कहीं पे भी किसी भी नेचुरोपैथी का कोई भी अगर मीटिंग होगी या कुछ हो तो वहाँ आपको स्प्राउट्स जरूर मिलेंगे। क्योंकि वो लोग स्प्राउट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। रॉ वेजिटेबल्स में प्याज, टमाटर, ककड़ी, ये सब तो होगी ही सही स्प्राउट्स में, लेकिन स्प्राउटिंग से जो बीन्स की जो गैस बनाने की कैपेसिटी होती है, जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जिसके कारण ही गैस बनती है, उसको 90% कम हो जाता है वो प्रॉब्लम उसका बाय स्प्राउट। तो स्प्राउटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। रॉ जूसेस, फ्रेश जूसेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कैंड जूसेस नहीं, फ्रेश जूसेस दैट शुड बी कंज्यूम्ड एंड सीरियल्स शुड बी मिनिमम। So, any last final 3 tips in this COVID-19 situation? Let's conclude our session. आपकी लास्ट आखिरी 3 टिप्स आप क्या देना चाहेंगे जो सभी कर सकें, उनके बारे में कुछ बता सकें? एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि जल नीति, जो हर आदमी कर सकता है। जल नीति अगर आप नहीं है तो आप उंगली से पानी लेके कर सकते हैं, और 1-2 बार आप करेंगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। जल नीति इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नेजोफेरिंग्स में ही चिपकता है वायरस, तो अगर हमने उसी लेवल पे उसको बाहर कर दिया तो हम काफी हद तक इससे बच सकते हैं। सेकंड थिंग इज अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखना, ताकि वाइटलिटी हमारी बॉडी की अच्छी रहे, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो। तो ईट एज मच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज यू कैन, एंड ट्राई टू कट ऑफ एसिडिक फूड और सीरियल्स और स्पाइसेस और फास्ट फूड एज मच एज यू कैन। थर्डली, हैविंग राइट मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो अगर हमारा मेंटल एटीट्यूड ठीक होगा, राइट होगा, तो हम हर चीज से लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा मेंटल एटीट्यूड ठीक है तो नेचुरली वाइटलिटी हमारे सेल्स की बढ़ जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन्स में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, ऐसा नेचुरोपैथ्स कहते हैं, और हमें भी पता है एज अ साइंटिस्ट। बिल्कुल सही है। माइंड वाली जो बात है, दैट माइंड कंट्रोल्स योर बॉडी एज वेल, तो वही आप कहना चाह रहे हैं कि जो पॉजिटिव थॉट्स आपके होंगे, that will send signals to your cells and things will be well under your control. So your positive mindset is very, very important. Having right mental attitude is very important, especially at this time. Very right. Otherwise भी important है, लेकिन इस समय तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा नॉलेज आपने दिया डॉक्टर नीलम, बहुत अच्छा लगा, और निश्चित रूप से सुनने वाले दर्शकों को भी बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।